Hello, Rajlakshmi. Am I audible? Yes. How are you, Rajlakshmi? Congratulations from all of us, from entire team of Merit Life Sciences. Hello. Hello, Rajlakshmi. आवाज आ रही है? Yeah. Good evening, sir. Good evening, So beta. How are sorry, sir. you? I'm still on the way home. Oh, so, Yeah, sir. Still haven't reached. okay. When you are reaching at home? Yeah, it will take another 15 to 20 minutes, sir. It's fine. Okay, it's fine. So, just you How reach are at you, sir? home. I'm fine, and I'm very glad to know that your results you Thank you, succeeded sir. in the end, and all your effort Thank you. give a nice results, and you Thank you, sir. you deserve it. Huh? And all my students, Thank you, sir. Lakshmi, Ravindra, Bilkis, were waiting for you. You will come and you will give Okay. them some tips because Lakshmi already attempting work hard to get the success. Okay. So you will be a kind of inspiration for them to properly guide them Thank you, sir. how Yeah, they sir. should Sure. start, what they should read, what mistakes they should not do. है ना? Yeah. Sure, sir. मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा कैमरा भी ऑन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए. Yeah, sir. So, if everyone is studying, sir, or everyone is doing the PhD? They still have not started PhD. I think Manish was there, one student, but Okay. he has not joined it today. Okay. So he is Okay, sir. started PhD. Okay, sir. Hmm. Yeah. So hello everyone. I studied with sir for the last 6 months. Yeah. And he's a great inspiration actually. He teaches a lot of basics which has to be strong. So we don't concentrate much on basics, right? So it helps a lot in research actually. Yeah, so I appeared for JRF CSAR net for like 4 times, and I was so juggling between my PhD as well as studying for JRF. So I told sir a lot of times that it's very difficult for me, and sir was like, "No, you can, you have to do it." And then at last, I got my SRF. So I'm very glad that if I can able to do it, that everyone can do it, and consistency is the main thing that can drive us forward. Even if you don't get results in a single time or a single effort, surely we people can get the result in a few years ahead. So it took nearly 4 years for me to reach this place actually to get an SRF. So yeah, if consistency is the main key. We have to keep on working hard. That is the Right. main thing that I have learned so far. Yeah. That is a great Even though, point. Yes. yes, I feel rejected a lot of times that I didn't get through the JRF. And I have told sir also, and he told me that these are the mistakes that you are making. You should not make these. Understand the concept correctly. So the concept that you're learning in theoretical manner is very helpful that when you apply it in a practical way. So while doing your experiments, so you have to try to relate the theoretical thing that you are learning, that he is teaching, to the practical way that you're doing in the laboratory. So it will help you to calculate, to increase your speed and increase the process with accuracy in during your exams and even during your further research career. So that is what I learned actually. So consistency and application of theoretical in a practical way helps a lot in a career in a long way ahead. Yeah, sir. This is what I learned from you. Thank you. And any Yeah, question sir. from anyone? Lakshmi, I think you can ask. Bilkis. Raj Lakshmi is in Karnataka, I think, right? Chennai, sir. Tamil Nadu. Chennai. Okay. And Yeah. she's from Bangalore, Lakshmi. Very close to you. Okay. I'm Okay. from Kerala actually. Okay. Kerala. Okay, okay.
എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് അറിയാം. എന്റെ അമ്മന്റെ നാട് Oh, കേരള. that is നല്ല മലയാളം. എനിക്ക് മലയാളം അത്ര അറിയില്ല ലക്ഷ്മി. No, but this is still very good മലയാളം. ഓക്കെ. അത് മൊത്തം പറയാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ നല്ലതാണ്. എന്റെ അമ്മയുടെ നാട് ഷൊർണൂരാ. ഓക്കെ, പാലക്കാട്. പാലക്കാട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ണൂരാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ട്. അതന്നെ, ഇങ്ങനെ കണ്ടുട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. No question is there, Lakshmi? You should ask. No. Bilkis, you can ask. Where are you doing your PhD from currently? Yeah, I'm doing it in University of Madras. Okay. Yeah. So I was there for a project in CPT, and then I got into my PhD under the same guide. So the main thing when you are going to enroll a PhD is choosing a correct guide. That helps you a lot. Right. That is great. So you have to research a lot about your guide before just enrolling in. Okay. That's a lot actually. It decides your career. Yeah. Because guide must have a depth of learning and must have all the practical knowledge, theoretical knowledge. Then they can give you the right kind of guidance. And the publication is a must in today's day. Yeah. It's very difficult to get the first publication. But once you get into the groove, you will just taste how it feels and you will start doing it again and again. That is how it starts. So you have to know how to start writing your research paper, how to read a paper, how to analyze, how to bring novelty. So all those plays a major role when you are going to perform your research. So that you people will get to know based on the people that you are surrounded with. So sir is a great researcher. Actually, you can learn a lot from him apart from learning for CSIR. So he can guide you people well. Lakshmi has already realized. Yes, sure. That's yes. why she's constantly studying from last 6 months. Okay. It's been a great opportunity, sir, to be with you. Yes, always welcome. And one more question from my side. Yes. Is there any special form for that? No, sir. Actually, the call for comes on October last. So it's like you have to have the person should have enrolled PhD. That is the first criteria. And the second criteria is they should have minimum of 3 publications in international papers index journals. Okay. And how you have And to a apply research online, I proposal. think. Online, I think you have to apply. There is no specific exams, right? Yeah, sir. And a research proposal. A very good research proposal, actually. Yes. Yeah. So all these are required, and it will be scrutinized by the technical panels. Right. Yeah, and actually I saw my result 2 days later. It was actually on 28th. It got released. I saw it yesterday. So I was jumping up and down. I didn't even realize that I got into it. How many hours every day you are devoting for the research? I was devoting 20 hours. Sir, I start. Yeah. I start by 10. 10 to 10. Right? So there is some technical problem. I think network issue is there. Bilkis, you have not asked any questions. Do you have any question? Then I can reply. No, sir, I don't have any question. Okay. So Lakshmi still have a lot of questions. Lakshmi? No, sir, not. Okay. So आएगा तो मैं पूछूं. हाँ नहीं आपके माइंड में नहीं है मैं बता देता हूँ.
कि अगर मान लो JRF क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैन वी इनरोल फॉर PhD? यस, you can go for the PhD, and by next 1 year if you are finding the right guide, then you can got the SRF. This is the nutshell, right? Ki, means don't underestimate your value or your talent. If you are not getting, Rajalakshmi, are you there? You can go ahead and guide your life journey, how you selected the guide, what is your topic, currently what is your motivation. Am I audible? Yes, sir. Rajalakshmi? Okay, Rajalakshmi in the way, and as soon as she will have resolved this issue of internet, she will come back. So what my point of view is, always try to join some reputed university, right? And find guide by yourself, your interest, because sometimes it happens. Suppose I was always interested in BHU, JNU, Delhi University, University of Madras, and IIT Bombay. These were my key institute that I wanted to join. Got the idea? तो मेरा ये फोकस होता था कि ये यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूं. इसके लिए मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया. फिर मेरे दिमाग में भी कुछ होनी चाहिए, राइट, लाइक इनोवेटिव पॉइंट्स होने चाहिए कि व्हाट आई एम इंटरेस्टेड. तो मेरा ये था कि फ्यूचर क्या है रिसर्च का. फ्यूचर लाइज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट, और इंडस्ट्रियल का. जैसे अभी मोदी साहब ने क्या बोल दिया कि आप खुद से करो. राजलक्ष्मी, ऑडिबल, यू कैन गो अहेड. You can tell them because these are the very small young researcher. अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम स्टिल आ रही है. चलो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ थोड़ा सा. मैं बड़ा इनोवेटिव हूँ शुरू से, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि इनोवेटिव always get the success. A lot of experiences are with me, and also I get a small percentage of success. तो वो किसी रीजन से नहीं मिला क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड सेलेक्टिंग द राइट गाइड. बहुत सारी लैब नहीं सही थी, बहुत सारी चीजें थी कि मेरा मैच नहीं करता था जो मेरी आइडियोलॉजी थी मेरे गाइड से. मेरे गाइड थोड़े ओल्ड कॉन्सेप्ट वाले थे, और मेरा ये था कि इंडस्ट्री से लिंक अगर कोई रिसर्च हो देन दिस इज यूजफुल फॉर मी आल्सो एंड फॉर सोसाइटी आल्सो. और अभी जो ट्रेंड था 2001 की बात मैं कर रहा हूँ, व्हेन आई क्वालिफाइड माय मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो मेरे दिमाग में ये था कि सारे ना अमेरिका जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं. फिर मेरे अगर सपोज मैं नहीं जा पाता हूँ तो व्हाट इज द अनदर ऑप्शन फॉर मी. किसी इंडस्ट्री में तो एब्जॉर्ब हो जाऊँ, क्योंकि जॉब की बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे. प्लेसमेंट नहीं होती थी और बहुत कम नॉलेज थी, इतना इंडस्ट्री का एक्सप्लोरेशन भी नहीं था, राइट. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. तो मैंने फिर एक्सप्लोर किया कि चलो भाई कुछ ऐसे चीज़ों पे नए इनोवेशन पे काम किया जाए. जैसे बायोप्लास्टिक पे हमने काम किया, उसके प्रिकर्सर पे काम किया, उसमें 3 पेटेंट निकाले. और एक हमारे जो सीनियर थे, ही वाज द डायरेक्टर इन द नाउ करंटली ही इज इन द डायरेक्टर पैनिसिया बायोटेक. पहले वो हैदराबाद में एक कंपनी थी, उसका नाम मुझे मिस हो रहा है, उसमें थे. तो ही वॉज अ रोल मॉडल काइंड ऑफ. तो हमारे गाइड तो चलो काफ़ी एजेड थे और इतना हेल्प नहीं कर पाते थे, बट ही वॉज टेलिंग एंड गाइडिंग एवरीथिंग. मेरा पहला पेपर जो आया दैट वाज ए रिमार्केबल, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पेपर कैसे लिखना है, व्हाट इज़ PhD. बिल्कुल MSc वाला कॉन्सेप्ट था कि नोट्स बनाते थे बैठ के पेपर का, रात भर पढ़ते थे रिव्यू पेपर. एनालिसिस बिल्कुल नहीं आती थी और देयर वाज नो वन टू हेल्प आउट, क्योंकि ये ऐसी फील्ड होती है लाइक माइनिंग, है ना. आपको खुद ही यू हैव टू सर्च ए स्मॉल मॉलिक्यूल. इनोवेशन इज ए काइंड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. यू आर मेकिंग ए हाइपोथेसिस कि यहाँ पे होगा, है ना. इस तरह का चीज़ होती है. एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बाई हार्ट बाई माइंड, है ना. आपका कोई साथ नहीं देगा दुनिया में. आपको लगेगा बिल्कुल आप अकेले हो गए हो, है ना, सबने साथ छोड़ दिया है. देयर इज नो फ्रेंड. एंड फ्रेंड इसलिए नहीं कि टाइम नहीं है आपके पास, आप जा ही नहीं सकते.
लोग मूवी जा रहे हैं तो आप कहोगे पेपर यार मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है। आपके छोटे छोटे टूल्स होंगे, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगी। चलो आप तो काफ़ी इनोवेशन हो गया। पहले लैपटॉप नहीं होता था, सारा हाथ से लिखना होता था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही कम ऑप्शन थे, बहुत कॉस्टली थे। हार्ड कॉपीज़ में अवेलेबल थे रेफरेंसेस, तो वो लाइब्रेरी जाके ही मिलती थी। तो हम लोग 12 नाइट तक बैठे रहते थे लाइब्रेरी में, इसको करा के कि भाई ये निकाल ले, ये काम ख़त्म करें। रेफरेंस लिखने का तरीका भी नहीं मालूम था, सारा हैंड से करना पड़ता था। तो काफ़ी हार्ड वर्क था, बट ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर था। एक कॉन्सेप्ट था कि हमें पेपर पब्लिश करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बना रखे थे। और SRF मुझे भी मिला था, JRF भी मिला, फिर SRF भी मिला। तो देन आई रियलाइज कि ऐसा कोई, मैंने एक लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में, है ना, देयर इज ए समरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ फेलोशिप बिसाइड ICMR, DBT, JRF, DST, JRF। तो मेरा ये एक नटसल में एक पॉइंट है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, कि आप लोग CSIR दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं वही स्टैंडर्ड का पढ़ाता हूँ, CSIR। बाकी मैं किसी स्टैंडर्ड में नहीं जाता है। DBT क्या है, गेट क्या है, सारे मैचिंग है सिलेबस। आप अगर आपने एक तैयारी कर ली तो आपका सारा ही, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, जितना हार्डवर्क चाहिए। मैं भी जैसे हार्डवर्क करता हूँ, इस एज में भी करता हूँ काफ़ी। 20 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया आज। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी पेटेंट किया, बुक्स लिखी, 2-3 बुक्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे, आप सर्च करोगे तो। एनिमल सेल कल्चर का लिखा है, एंजाइम टेक्नोलॉजी का लिखा है, एक थीसिस पब्लिश हुई है हमारी जर्मनी से। अभी एक चल रहा है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी लिख रहे हैं। तो लक्ष्मी को भी ऑफर किया था कि कुछ लिखो तुम। तो अपने बच्चों को काफ़ी, जैसे एक आफरीन बच्ची थी, तो उसने लेक्चरशिप लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था, तो उसको भी 2 पेपर में हमने अपने रिसेंट पेपर में नाम डाल दिया था। एक लड़का था, कोविड के कारण वो जर्नी बीच में छोड़ गया, क्योंकि उसके फादर नहीं थे, तो फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो उसकी इंडस्ट्री में हमने प्लेसमेंट करवाई। फिर उसके नाम पे भी अरिंदम, आपने, अगर मैंने चर्चा की होगी कभी तो सुना होगा, अरिंदम वाज देयर। तो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आए हमारे पास, है ना। और फीस हमने इतनी ज़्यादा भी नहीं रखी कभी कि प्रॉब्लम आए। और जैसी सिचुएशन होती है, अप डाउन होता है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली फीस पे करने पर टेंशन भी बढ़ती है। और जो फ्री बच्चे होते हैं, देखो अभी कल 6, 7, 8 थे, आज बिल्कुल गायब है सारे। तो एक फीस देने का ये होता है कि यू आर कमिटेड, दैट्स वाई द फी इज लेविड। वी कैन नॉट गो 100% फ्री। अगर फ्री कर देंगे तो आप, पता चलेगा ये क्लास भी बंद हो जाएगी जो चल रहा है, कोई नहीं आएगा, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। व्हेन यू आर गिफ्टेड विद समथिंग, you have no value of that. When you are buying, even you are spending 1 rupees, then you are caring. This is a common mentality. तो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए साइंटिस्ट को कि क्या वैल्यू आने वाली है, किस चीज़ पे काम करें, क्या प्रोजेक्ट टाइटल हो। और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, 200 से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ते हैं। उसमें से आपका क्या कोर एरिया है जिसमें आप फ्लुएंट हो, दैट इज योर कोर एरिया, जिसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है, दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑल्सो। क्या आपके लिए बेहतर है, क्या, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें आप खोल के सोच सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो जब आप उसमें, उस फील्ड में PhD करते हो, तो देन यू बिकम एक्सपर्ट। ठीक है ना। तो अभी का ट्रेंड जो चल रहा है वो मैं बता देता हूँ। अभी का ट्रेंड ये है कि आफ्टर मास्टर्स डायरेक्टली यू शुड नॉट गो फॉर द PhD। आप CSIR की तैयारी भी करो, एंड ऑल्सो आफ्टर 1-2 अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो गो फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है ना। इंडस्ट्री को तुरंत ऑप्ट करो, क्योंकि इंडस्ट्री का ऑप्शन ये होता है कि दे आर गिविंग यू सम टॉपिक। भाई आप जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन में गए, तो वैक्सीन में आपको क्लिनिकल ट्रायल में मान लो कोई काम है, आपने 1-2 साल किया, तो now you are having the great number of data, तो that you can convert into the PhD। तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, पेटेंट भी लिख सकते हो, उस पर बुक लिख सकते हो। तो एक नटसेल में कहें तो PhD इज काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ अननोन टू नोन, है ना। बहुत कम पता है और उसको आपको ज़्यादा पता करना होता है। एंड एवरी डे यू हैव ए न्यू पॉसिबिलिटीज। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होता है, क्योंकि अगर एक भी डेटा आपने मिस किया तो हो सकता है वो दूसरा पेटेंट करा ले उससे, क्योंकि एक टॉपिक पे पूरे वर्ल्ड में 8 लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। एंड आई वाज सरप्राइज कि जो मैं सोच रहा था
उस पे नेक्स्ट ईयर पेटेंट आ गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। जैसे मैंने लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन पे बात करी थी, तो मेरा ग्राफ ऐसे आता था, हमेशा ऐसे आता था। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जानते हो, कॉर्ड वाले बैक्टीरिया है, नॉन हार्मफुल है, इजीली ग्रो होते हैं। तो ये हमें जब मैं माइक्रोबियल ग्रोथ करता था, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का ग्राफ बनाता था तो जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो होते थे तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता था, और जो रिसर्च पेपर में थे उनका ग्राफ ऐसे होता था या ऐसे चला जाता था। तो मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, मैंने इसको एग्जैक्टली भेज दिया पेपर में पब्लिश होने के लिए। अब देखो यहाँ पे मेरी मिस्टेक, अदरवाइज मैं एक और भी बड़ा इनोवेशन कर लेता यहाँ पे। तो वो मेरे नाम से शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्चर के पास, मे भी उसने ऑब्जर्व किया हो ये चीज़। तो मुझे पेपर पब्लिकेशन के जो पैनल थे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, द ऑर्गेनिज्म इज डाइंग और ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग टू ईच अदर। अब चूंकि लेबोरेटरी थी नहीं, गाइड को इंटरेस्ट लेते नहीं थे, तो प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल नहीं पाई और मुझे समझ नहीं आया। बाद में उस बंदे ने रिपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया वाले ने, एग्जैक्टली में हो क्या रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म इज डाइंग, है ना। तो वो एक तो हाई कंसंट्रेशन से उनकी डेथ भी हो रही है, और चूंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर रहे हैं, तो वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग टू अदर। तो ये दो नॉवल डिस्कवरी उसके नाम पे चली गई, जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। तो नाउ यू कैन रियलाइज एवरी डे इज ए काइंड ऑफ नॉवेल्टी, फुल ऑफ एडवेंचर। दोस्ती कहीं यारी काम नहीं आती है रिसर्च में, यू हैव टू बी अलोन, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। माइलस्टोन होता है, बहुत टफ होता है, मीन्स आप जमीन पे हो, आपको हिमालय चढ़ना है, ऐसे ये होता है पीएचडी का टारगेट। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको हिम्मत दे रहा हूँ कि नाउ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आप इतना नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, यू शुड बी वेरी डिफरेंट। तो वो अभी से हैबिट डाल लो, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की। एनालिसिस इज द की पॉइंट, एनालिसिस करना, सोचना हर चीज को। तो दैट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो कि क्या लिखा है, क्या मीनिंग है इसकी। भले स्लो स्पीड है, आपने 5 ही यूनिट पढ़े हुए हैं, लेकिन CSIR में एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा रहे हो, तो देर इज ए 90% पॉसिबिलिटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसने ऑल 13 यूनिट्स पढ़ के कोई भी CSIR क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है। अगर आपका कमांड नहीं है सब्जेक्ट पे, तो आपका या तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या तो सारा चला जाएगा। डू यू एग्री? लक्ष्मी, व्हाट डू यू से? इज इट राइट? हाँ सर। है ना, कि कम पढ़ो लेकिन डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आज इतना के लिए रहने देते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज एनफ टुडे, और अब हम मिलेंगे मंडे को, ठीक है। सो बी डेडिकेटेड, मेंटेन कॉन्स्टेंसी, एंड ऑलवेज थिंक गुड अबाउट यू। अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरे को सोचने दो जो क्या सोचते हैं लोग, राइट। ऑलवेज थिंक यू आर डिफरेंट। आप आम लोगों से बिल्कुल अलग हो, तभी साइंटिस्ट बनने जा रहे हो। अरस्तु प्लेटो का एग्जाम्पल है, राइट। कुछ भी नहीं था, कल मैंने स्टुअर्ट के बारे में बताया था, है ना, कि कैसे उन्होंने जीन मैपिंग को बिना किसी के हेल्प के कैलकुलेट किया, सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करके। तो डिफरेंट करोगे फिर मिलेगा। नॉर्मल लाइफ में क्या है, लोग आम तरह खाते पीते घूमते टाइम पास करते हैं, इन वन वर्ड व्हाट यू कैन से। आपको टाइम पास नहीं करना, टाइम प्लान करना है, ताकि आप सफिशिएंट अमाउंट में टाइम निकाल के मनोरंजन भी कर लो, है ना, आपको मस्ती भी मिल जाए, आपका योगा भी हो जाए, आपको प्रॉपर बॉडी मैनेजमेंट भी हो जाए, योगा से हेल्थ मैनेजमेंट पूरा कर लो। और हेल्थ मैनेजमेंट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर दिस वन। तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, हर चीज टाइम पे करो, खाने का टाइम पे खाना खाओ, मॉर्निंग के टाइम पे जो योगा का आधे घंटे देते हो 1 घंटे देते हो जरूर करो, क्योंकि इससे माइंड बॉडी स्ट्रांग होगा, बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड होगा। राइट काइंड ऑफ डाइट लो, है ना। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सा खाना सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, नहीं। एवरीवन, पढ़ने लिखने वाले की बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती है, ऑलवेज दे आर इन्फेक्टेड विद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको लगी रहती है, बिकॉज दे आर नॉट हार्ड वर्कर। लॉन्ग आवर्स की सिटिंग होती है, लैपटॉप पे है ना। तो बहुत लाइट वेटेड खाना खाना चाहिए,
खाने का बहुत रोल है। अभी गर्मी आ गई है, टी कॉफी कम कर दो और लस्सियाँ वगैरह ज़्यादा पियो, है ना, ठंडी चीज़ ज़्यादा पियो, माइक्रोब्स को मेंटेन करो बॉडी में, और लिक्विड हमेशा लेते रहो 1-1 घंटे पे। दैट विल मेंटेन द हाईएस्ट IQ लेवल ऑफ द ब्रेन। So I think this session was inspiring for all of you. Today's session. Yes. What is your feedback? Bilkis, Ravind, Lakshmi, है ना? तो there are a lot of role model students, वो आते रहते हैं सेशन लेने, मैं उनको बुलाता भी रहता हूँ। और सतपति अभी स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा पेपर वर्क है, उसका भी JRF हो गया है, तो ही विल बी ज्वाइनिंग सून टू यू। अभी थोड़ा सा वो मेंटल आउटब्रेक में आ रहा है बाहर अभी मैंने उसको काफ़ी काउंसलिंग की है। तो माई वन रोल इज काउंसलिंग। कभी भी आप कॉल करो, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, इवन मैं अप्रोच करता हूँ। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं मैं उनको फॉलो अप करता हूँ। लक्ष्मी को मैंने कई बार कॉल की, और जो पुराने बच्चे उनको कॉल करता रहता हूँ, आओ, मोटिवेट करता हूँ, आओ पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे भी PhD गाइड के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आफरीन, वो मेरे अंडर में करेगी, तो आई विल गाइड हर। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए खुद सोचना है, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, वी विल मीट यू ऑन द मंडे। थैंक यू सो मच।